Welcome to our legal learning series. In today's video, we bring you 20 multiple choice questions on law that will test your knowledge and enhance your understanding of key legal concepts. Whether you are a law student, a legal professional, or just someone interested in learning more about the law, this quiz will help you sharpen your legal skills. So grab a pen and paper and let's dive into these 20 must know MCQs. And for your question on how to e-Dakhil, a very short answer. E-Dakhil is an online platform introduced by the Government of India for filing consumer complaints in consumer courts and that too digitally. So, to file a complaint, visit the official e-Dakhil portal of Government of India, register yourself. After that, submit the necessary documents and thus complete the complaint filing process. And this all is done in a jiffy online. This is e-Dakhil procedure for you. Now let's start with our MCQs. A threatens to publish a defamatory libel concerning B unless B gives him money. He thus induces B to give him money. A has committed A. Extortion, B. Defamation, C. Criminal intimidation, D. Robbery. And the correct answer is A. Extortion. जब ए बी के बारे में एक डिफमेटरी लेबल पब्लिश करने की धमकी देता है और कहता है कि अगर बी उसे पैसे नहीं देगा तो वो ये काम कर देगा, तो ये एक्सटॉर्शन है, मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती से पैसे निकलवाना। इन केस में ए ने धमकी देकर बी को मजबूर किया कि वो उसे पैसे दे, वरना उसकी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। लॉ के हिसाब से किसी भी इंसान को धमकी देकर पैसा या कोई चीज़ लेने की कोशिश एक्सटॉर्शन होती है, जो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। Question: What is the offense preparation whereof is also punishable? A. Theft, B. Dacoity, C. Murder, D. Rape. And the correct answer is dacoity. Dacoity एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें 5 या उससे ज़्यादा लोग मिलकर लूट, चोरी या ज़बरदस्ती से किसी की प्रॉपर्टी लेते हैं। इसका स्पेशल पॉइंट ये है कि सिर्फ डेकॉइटी करना ही नहीं बल्कि उसकी तैयारी करना भी क्राइम माना जाता है। अगर पुलिस को ये पता चल जाए कि कुछ लोग मिलकर डेकॉइटी की प्लानिंग ही कर रहे हैं, तो सिर्फ ये प्लानिंग भी पनिशेबल होती है। इसका मतलब ये है, अगर किसी गैंग को डेकॉइटी की प्लानिंग करते हुए पकड़ा गया तो उन्हें बिना एक्चुअल लूट किए भी पनिशमेंट मिल सकती है। Question: A makes an attempt to pick the pocket of B by thrusting his hand into B's pocket. A fails in the attempt in consequence of B's having nothing in his pocket. A is guilty of A. No offense, B. Theft, C. Attempt to theft, D. Using criminal force. And the correct answer is C. Attempt to theft. ए ने बी के जेब से पैसा या कोई चीज़ चुराने की कोशिश की और अपना हाथ भी बी के पॉकेट में डाला, लेकिन बी की जेब खाली थी। इस वजह से ए अपने इरादे में सफल नहीं हो सका। फिर भी ये एक अटेम्प्ट टू थेफ्ट माना जाएगा, क्योंकि चोरी करने की कोशिश करना भी लॉ के हिसाब से एक क्राइम है, चाहे चोरी हो या ना हो। अटेम्प्ट का मतलब होता है किसी क्राइम को अंजाम देने की पूरी कोशिश करना, चाहे वो सक्सेसफुल हो या नहीं हो। इसलिए ए गिल्टी होगा अटेम्प्ट टू थेफ्ट का, क्योंकि उसने चोरी करने की कोशिश की। Next question: A voluntarily throws into a river a ring belonging to B with intention thereby causing wrongful loss to B. A has committed A. Theft, B. Extortion, C. Robbery, D. Mischief. And the correct answer is D. Mischief. ए ने जानबूझकर बी की रिंग को नदी में फेंक दिया ताकि बी को नुकसान हो और उसका लॉस हो जाए। ऐसा करने का ए का इंटेंशन था कि बी को उसकी प्रॉपर्टी का कोई फ़ायदा ना मिले या वो उसे दोबारा ना पा सके। इस तरह का एक्ट मिसचिफ माना जाता है, जो शरारती तौर पर किसी का नुकसान करना है। लॉ के हिसाब से अगर कोई जानबूझकर किसी की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करे या उसका लॉस करने की कोशिश करे तो वो मिसचिफ का दोषी होता है। यहाँ ए ने डेलिबरेटली बी को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाने के लिए उसकी रिंग को नदी में फेंक दिया, इसलिए ए गिल्टी होगा मिसचिफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हाट पनिशमेंट मे बी अवॉर्डेड टू द पर्सन हुज एक्ट इज कवर्ड अंडर जनरल एक्सेप्शंस? A. No punishment. B. Half of the punishment prescribed for that offense. C. 1/4 of the punishment prescribed for that offense. D. Depends upon discretion of the court. And the correct answer is A. No punishment. अगर किसी व्यक्ति का एक्ट जनरल एक्सेप्शंस के अंडर आता है तो उसे कोई सज़ा नहीं दी जा सकती। जनरल एक्सेप्शंस का मतलब होता है ऐसे कंडीशंस जिसमें लॉ किसी इंसान को क्रिमिनल लायबिलिटी से फ्री कर देता है, चाहे उसने कोई एक्ट किया हो। जैसे नंबर 1 है सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा। अगर किसी ने अपनी या दूसरे की सुरक्षा के लिए कोई एक्ट किया हो, उसे जनरल एक्सेप्शन में माना जाएगा। नेक्स्ट है इंसैनिटी, मतलब पागलपन। अगर कोई इंसान अपने होश में ना हो और उसे समझ ही नहीं आए कि उसका एक्ट गलत है, तो वो भी जनरल एक्सेप्शन में माना जाता है। थर्ड है माइनर,
दैट मीन्स बालक होने की स्थिति में अगर कोई 7 साल से छोटा बच्चा कोई एक्ट करे तो उसे पनिश नहीं किया जा सकता। नंबर 4, एक्सीडेंट, दैट मीन्स दुर्घटना। अगर किसी व्यक्ति से बिना इंटेंशन के एक्सीडेंट हो जाए तो वो लॉ के अंडर जनरल एक्सेप्शन में आता है। इन सब सिचुएशंस में क्रिमिनल लॉ उन्हें माफ़ कर देता है और उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलती क्योंकि उनका एक्ट जनरल एक्सेप्शंस के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सेंटेंस एन असिस्टेंट सेशंस जज में अवॉर्ड? A. Life imprisonment. B. Any sentence authorized by law except a sentence of death or of imprisonment for life or of imprisonment for a term exceeding 10 years. C. Up to 14 years. D. Up to 20 years. And the correct answer is B. Any sentence authorized by law except a sentence of death or of imprisonment for life or of imprisonment for a term exceeding 10 years. Assistant Sessions Judge law के according भी प्रकार की सज़ा सुना सकता है, लेकिन उसके पास कुछ लिमिटेशंस भी होती है। वो डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता, वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा नहीं दे सकता, एंड थर्ड इज़ वो 10 साल से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकता। इसका मतलब ये है अगर किसी केस में सज़ा 10 साल या उससे कम की हो तो असिस्टेंट सेशंस जज उससे सज़ा दे सकते हैं, लेकिन अगर केस सीरियस है और सज़ा 10 साल से ज़्यादा या फिर डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है तो ये डिसीजन ओनली हायर कोर्ट्स के पास होता है। Next question. A person arrested by a police officer may be kept in custody for A. 2 days, B. 3 days, C. 24 hours, D. 1 week. And the correct answer is C. 24 hours. जब पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो उसको सिर्फ 24 घंटे तक ही कस्टडी में रख सकती है। इसका मतलब ये है कि पुलिस बिना कोर्ट के परमिशन के किसी अरेस्टेड पर्सन को एक दिन से ज़्यादा नहीं रख सकती। 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी होता है। अगर पुलिस को उससे ज़्यादा समय तक रखना हो तो कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। ये रूल लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है ताकि पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना वजह ज़्यादा देर तक बंद न रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट ऑफ मंथली मेंटेनेंस मे बी अवॉर्डेड इन फेवर ऑफ अ वाइफ अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC? A. 300 rupees, B. 400 rupees, C. 500 rupees, D. Any amount. And the correct answer is any amount. पहले इसका आंसर होता C. 500 रुपीज़। सेक्शन 125 CRPC के तहत पत्नी को सिर्फ 500 तक का मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता दिया जा सकता था, लेकिन अब ये लिमिट बंद हो चुकी है। कोर्ट अब केस के सर्कमस्टेंसेस देखकर पत्नी को 500 से ज़्यादा भी मेंटेनेंस दे सकता है ताकि उसका जीवन यंत्रण अच्छे से हो सके। ये प्रोविज़न उन महिलाओं की सुरक्षा के लिए है जो अपने पति से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं पा रही होती हैं। अगर पति पत्नी का ध्यान नहीं रखता तो कोर्ट उसे मेंटेनेंस देने के लिए मजबूर कर सकता है। In a first information, an offence is cognizable and other is non-cognizable. The whole case shall be deemed to be A. Cognizable, B. Non-cognizable, C. It is to be seen whether it is a warrant case, D. It is to be seen whether it is a summon case. And the correct answer is A. Cognizable. अगर किसी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR में एक ऑफेंस कॉग्निजेबल है और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल तो पूरा केस कॉग्निजेबल ही माना जाएगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जिसमें पुलिस बिना कोर्ट के परमिशन के भी अरेस्ट कर सकती है, जैसे मर्डर, रेप, किडनैपिंग, डिकॉइटी एक्सेट्रा। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जिसमें पुलिस को अरेस्ट या इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है, जैसे चीटिंग, डिफेमेशन, पब्लिक न्यूसेंस एक्सेट्रा। लेकिन अगर एक ही FIR में दोनों तरह के ऑफेंसेस लिखे हो तो केस को पूरा का पूरा कॉग्निजेबल माना जाएगा और पुलिस बिना कोर्ट के परमिशन के इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट करेगी और कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू अबाउट कोर्ट ऑफ सेशन? A. It can take cognizance without committal. B. It cannot take cognizance without committal. C. It can take cognizance on the recommended action of district magistrate. D. It can take cognizance if the challan is put up by the superintendent of police. And the correct answer is B. It cannot take cognizance without committal. कोर्ट ऑफ सेशन किसी भी केस का सीधा कॉग्निजेंस नहीं ले सकता जब तक मैजिस्ट्रेट उस केस को उसके पास कमिट ना करे। इसका मतलब ये है कि अगर किसी केस को डायरेक्टली कोर्ट ऑफ सेशन के सामने फाइल किया जाए तो वो उस पर एक्शन नहीं ले सकता। पहले मैजिस्ट्रेट को केस देखना होता है और अगर केस सीरियस है जैसे मर्डर, रेप, डकॉइटी एक्सेट्रा तो मैजिस्ट्रेट उसे कोर्ट ऑफ सेशन को भेजता है। इस प्रोसेस को कमिटल कहते हैं। ये रूल इसलिए बनाया गया है ताकि पहले मैजिस्ट्रेट एक बेसिक स्क्रीनिंग करे और फिर कोर्ट ऑफ सेशन सिर्फ सीरियस और प्रॉपर केसेस को हैंडल करे। Next question, no person shall be appointed as a public prosecutor for the district unless his name appears in the panel of names prepared by A. Sessions Judge, B. High Court, C. District Magistrate, D. Superintendent of Police.
एंड द करेक्ट आंसर इज सी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। किसी भी व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाने के लिए तब तक अपॉइंट नहीं किया जा सकता जब तक उसका नाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा तैयार किया गया पैनल में न हो। इसका मतलब ये है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अपॉइंटमेंट बिना किसी रैंडम व्यक्ति को डायरेक्टली नहीं दी जा सकती। पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक पैनल बनाता है जिसमें एलिजिबल लॉयर्स के नाम होते हैं, फिर उनमें से किसी एक को पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाता है। ये रूल इसलिए बनाया गया है ताकि सिर्फ क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर बने जो सरकार की तरफ से केसेस को इफेक्टिवली लड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच पनिशमेंट मे बी अवॉर्डेड टू एन अक्यूज्ड हु इज फाउंड गिल्टी अंडर अ summary trial? A. Not exceeding 2 years. B. Not exceeding 1 year. C. Not exceeding 6 months. D. Not exceeding 3 months. And the correct answer is not exceeding 3 months. अगर किसी समरी ट्रायल का मतलब होता है जल्दी निपटने वाले मुकदमे, तो अगर किसी समरी ट्रायल में अक्यूज्ड दोषी पाया जाता है तो उसे अधिकतम 3 महीने की सज़ा दी जा सकती है। समरी ट्रायल का मतलब होता है ऐसे छोटे मोटे केसेस जिनका फैसला जल्दी हो सके, जैसे छोटी मोटी चोरी, अवैध प्रवेश जैसे ट्रेसपासिंग, सिंपल हर्ट करना किसी को, एक्सेट्रा। इन केसेस में कोर्ट पूरा ट्रायल लंबा नहीं खींचता और जल्दी फैसला करके छोड़ देता है। इसलिए समरी ट्रायल के अंदर किसी भी दोषी व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा की सज़ा नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर एन अक्यूज्ड मे बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस इन हिज ओन डिफेंस? A. If he applies in writing on his own request. B. No. C. With the leave of Court of Session. D. With the leave of High Court. And the correct answer is if he applies in writing on his own request. अगर कोई अक्यूज्ड व्यक्ति लिखित रूप से अपनी इच्छा से कोर्ट में अप्लाई करे तो वो अपने ही डिफेंस में एक कॉम्पिटेंट विटनेस यानी कि एक योग्य गवाह बन सकता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी अक्यूज्ड मजबूरी या ज़बरदस्ती में अपने खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, लेकिन अगर वो खुद चाहे तो वो अपने बचाव के लिए कोर्ट में एविडेंस दे सकता है। ये रूल इसलिए बनाया गया है ताकि किसी भी अक्यूज्ड को ज़बरदस्ती अपने खिलाफ बोलने के लिए मजबूर ना किया जा सके, लेकिन अगर वो खुद अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहता है तो उससे ये अधिकार दिया जाता है। Next question, whenever a magistrate is of opinion after hearing the evidence for prosecution and the accused that the accused is guilty and he ought to receive a severe punishment, then such magistrate is empowered to inflict. The magistrate may forward the case to A. Session Judge, B. Chief Judicial Magistrate, C. District Magistrate, D. Concerned Police Station. And the correct answer is B. Chief Judicial Magistrate. अगर किसी मजिस्ट्रेट को एविडेंस सुनने के बाद लगता है कि अक्यूज्ड दोषी है और उसे कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके पास इतनी अधिक पावर नहीं है कि वो इतनी कठोर सज़ा सुना सके, तो वो इस केस में को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी CJM के पास भेज सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी मजिस्ट्रेट की मैक्सिमम सज़ा देने की शक्ति कम है और केस में ज़्यादा बड़ी सज़ा देने की ज़रूरत है, तो मजिस्ट्रेट उस केस को सीधा CJM के पास फॉरवर्ड कर सकता है। CJM के पास ज़्यादा अधिकार होते हैं और वो और कठोर सज़ा दे सकते हैं। ये रूल इसलिए बनाया गया है ताकि हर मजिस्ट्रेट सिर्फ अपनी जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग सज़ा दे सके और कठोर केसेस को उच्च अधिकारी कोर्ट तक भेजा जा सके। Next question. In one trial, A is awarded with the sentence which is not appealable, whereas sentence against B is appealable. Whether A can file an appeal against his sentence. Options A. No. B. Only with special leave. C. Yes. D. There is no such provision. And the correct answer is C. Yes. अगर एक ही ट्रायल में ए को ऐसी सज़ा मिली जो अपीलेबल नहीं है, लेकिन बी को ऐसी सज़ा मिली है जो अपीलेबल है, तो ए भी अपनी सज़ा के खिलाफ अपील फाइल कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर एक ही केस में एक अक्यूज्ड को अपील का अधिकार मिल रहा है तो दूसरे अक्यूज्ड को भी ये अधिकार दिया जाता है, चाहे उसकी सज़ा अपीलेबल कैटेगरी में हो या ना हो। ये रूल इसलिए बनाया गया है ताकि एक ही केस के अलग अलग अक्यूज्ड के साथ अन्याय ना हो और सबको समान अधिकार मिले। Question. If in a criminal appeal an accused dies under and his near relatives wish to continue the appeal, then within how much period they must apply? A. 4 months, B. 3 months, C. 60 days, D. 30 days. And the correct answer is D. 30 days. अगर किसी क्रिमिनल अपील में अक्यूज्ड की मौत हो जाती है और उसके करीबी रिश्तेदार चाहते हैं कि अपील कंटिन्यू की जाए, तो उन्हें 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन देनी पड़ती है। इसका मतलब ये है कि अगर अक्यूज्ड की मौत के बाद उसके फैमिली मेम्बर्स को लगता है कि अपील को आगे बढ़ाना चाहिए, तो उन्हें कोर्ट में फॉर्मल रिक्वेस्ट करनी होती है और ये रिक्वेस्ट 30 दिन के अंदर होनी चाहिए। ये रूल इसलिए है ताकि अगर किसी अपील के दौरान अक्यूज्ड की मौत हो जाए तो उसकी फैमिली को उसका केस कंटिन्यू करने का एक लीगल ऑप्शन मिल सके। Next question. When can a trial court
release an accused on bail under Section 389, subclause 3 of CRPC after conviction. Options: A, where accused is on bail under and imprisonment is not exceeding 3 years. B, where accused is on bail and imprisonment is not exceeding 5 years. C, where accused is on bail and imprisonment is not exceeding 7 years. Where offence is exclusively bailable whether accused is on bail or not. And the correct answer is A, where accused is on bail and imprisonment is not exceeding 3 years. जब अकस्ट को बेल पर रखा गया हो और उसे मिलने वाली सज़ा 3 साल तक की हो तो ट्रायल कोर्ट सेशन 389 सबक्लॉज 3 CRPC के तहत कन्विक्शन के बाद भी अकस्ट को बेल पर रख सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर अक्यूज्ड को कुछ टाइम की इम्प्रिजनमेंट मिलती है जो 3 साल से कम हो तो ट्रायल कोर्ट उससे अपनी कन्विक्शन के बाद भी बेल पर रख सकता है ताकि अक्यूज्ड को फाइनल अपील या सेंटेंस होने तक जेल में ना जाना पड़े। ये प्रोविज़न इसलिए है ताकि अगर अक्यूज्ड अपील करना चाहे तो उसे जेल नहीं भेजा जाए जब तक अपील का फैसला ना हो जाए। Next question. What is effect of trial conducted in wrong place? A, vitiated itself. B, vitiated if caused failure of justice. C, seriousness has to be seen. D, is to be referred to High Court. And the correct answer is B, vitiated if caused failure of justice. अगर ट्रायल गलत जगह पर कंडक्ट किया गया हो तो उसका इफेक्ट तभी इनवैलिड मतलब विटिएटेड हो सकता है अगर उससे जस्टिस का फेलियर हो। इसका मतलब ये है कि अगर किसी केस का ट्रायल गलत जुरिस्डिक्शल एरिया में हुआ हो और उससे जस्टिस डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम आई हो तो कोर्ट उस ट्रायल को इनवैलिड कर सकता है। ये रूल इसलिए है ताकि किसी भी व्यक्ति को अनफेयर एडवांटेज ना मिले और अगर ट्रायल का लोकेशन गलत होने की वजह से न्याय में कोई दिक्कत हो तो उसका रिजल्ट बदला जा सकता है। Next question. When will proceedings be vitiated if the magistrate is not empowered to do so? Option: to issue a search warrant under Section 94 of CRPC. B, to hold on inquest under Section 176 of CRPC. C, tries an offender summarily. D, to tender a pardon under Section 306 of CRPC. And the correct answer is C, tries an offender summarily. Same इसका भी explanation है प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा। अगर मैजिस्ट्रेट ने किसी ऑफेंस को समरी ट्रायल के अंडर ट्राई किया है लेकिन उसकी प्रोसीडिंग्स गलत तरीके से चलाई गई है या रूल फॉलोइंग में कोई गलती की हो तो उन प्रोसीडिंग्स को इनवैलिड माना जाएगा यानी विटिएटेड माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर समरी ट्रायल में प्रॉपर लीगल प्रोसेस का पालन नहीं किया गया है या मैजिस्ट्रेट ने अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ किया तो वो ट्रायल और उससे जुड़ी डिसीजंस इनवैलिड हो सकती है और केस को दोबारा से सही प्रोसेस के अंडर चलाना पड़ सकता है। ये रूल इसीलिए ही है ताकि फेयर ट्रायल और लीगल प्रोसीजर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन is whether A was ravished and thereafter murdered. The fact that without making a complaint she said that she had been ravished. Options: A is relevant as a conduct, B is relevant as a substantive evidence, C is relevant as a secondary evidence, D may be relevant under Section 32 subclause 1 or 157 of Evidence Act. And the correct answer is D, may be relevant under Section 32 subclause 1 or 157 of Evidence Act.